Morning class 8th, welcome to science class. Dear children, we are reading chapter 17, the stars and the solar system. In the previous class we have discussed about the planets of the solar system. There are 8 planets in our solar system. Besides the planets, there are other things that are also present in our solar system, and there are some other bodies which revolve around the sun. They are also members of the solar system. Let's learn about the some of them. First one is asteroids. What are the asteroids? Asteroids are the heavenly bodies. They are found between the Mars and the Jupiter. There is a large gap in between the orbits of Mars and Jupiter. This gap is occupied by a large number of small objects that revolve around the sun. These are called asteroids. Asteroids can only be seen through large telescopes. You can see the solar system, and between the Mars and the Jupiter there is a belt of these heavenly bodies that keep revolving around the sun, that is known as asteroids. So asteroid belt is found between the orbits of Mars and Jupiter. Next heavenly bodies are that revolve around the sun, comets. What are the comets? Comets are also the member of our solar system. They revolve around the sun in highly elliptical orbits. However, their period of revolution around the sun is usually very long. जो उनका रेवोल्यूशन पीरियड होता है सन के अराउंड बहुत लॉन्ग होता है, एंड अ कॉमेट अपीयर जनरली एज अ ब्राइट head with a long tail. The length of the tail grows in size as it approaches the sun. The tail of the comet is always directed away from the sun. You can see here with the help of this picture that this is the elliptical orbit of the planets, and then it when it approaches near the sun, it arises a tail, but the tail is away from the sun. ये tail है but it is away from the sun. This is a bright head. Okay, many comets are known to appear periodically. One such comet is Halley's comet, which appears after nearly every 76 years, and it was last seen in 1986. Can you tell when Halley's comet will be visible again? अब कॉमेट्स को बहुत सालों के बाद देखा जाता है. हेलेस कॉमेट का एक एग्जाम्पल है जो कि 76 ईयर्स के बाद में हमें दिखाई देता है, और लास्ट टाइम 1986 में इसको देखा गया था. अब आप बताएंगे कि कब हम इसको नेक्स्ट देख सकते हैं. वी कैन सी इट अराउंड 2060 के आसपास हम इसको देख सकते हैं, जब 76 ईयर्स इसके पूरे हो जाएंगे. देन सुपरस्टिशन अबाउट द कॉमेट्स. कॉमेट्स के बारे में एक सुपरस्टिशंस क्या है, लोग क्या अंधविश्वास रखते हैं. सम पीपल थिंक दैट कॉमेट्स आर मैसेंजर ऑफ डिजास्टर्स such as wars, epidemics and floods. But these are all myths and superstitions. Appearance of a comet is natural phenomenon. We have no reason to be afraid of it. ओके, लोग सोचते हैं कि जब कॉमेट्स दिखते हैं तो वॉर्स होते हैं, एपिडेमिक होती है, महामारी फैलती है या फ्लड्स आते हैं, लेकिन ऐसा कुछ नहीं है. इट इज़ अ नेचुरल फिनोमिनन. ठीक है, ये नेचुरल फिनोमिना है, तो ये ऐसा कोई सुपरस्टिशंस नहीं है. नेक्स्ट बॉडीज आर meteors and meteorites. First we will discuss about meteors. What are meteors? At night, when the sky is clear and the moon is not there, you may sometimes see bright streaks of light in the sky. जब क्लियर स्काई होता है, मून नहीं होता है, तो हमें ब्राइट स्ट्रीक्स ऑफ लाइट दिखती है. कई बार हम सोचते हैं कि तारा टूट रहा है, जिसको आप बोलते हैं दीज आर कॉमनली नोन एज शूटिंग स्टार्स. ऑल्दो दे आर नॉट स्टार्स, दे आर कॉल्ड मीटियोर्स. शूटिंग स्टार्स हम इनको बोलते हैं, बट ये स्टार्स नहीं होते हैं, इनको मीटियोर्स बोलते हैं. और मीटियोर इज़ यूजुअली अ स्मॉल ऑब्जेक्ट दैट ओकेजनली एंटर्स द अर्थ एटमॉस्फेयर. एक ऐसा स्मॉल ऑब्जेक्ट होता है जो अर्थ के एटमॉस्फेयर में एंटर करता है. एट दैट टाइम इट हैज़ अ वेरी हाई स्पीड. द फ्रिक्शन ड्यू टू द एटमॉस्फेयर हीट्स इट अप. जब अर्थ के एटमॉस्फेयर में एंटर करेगा मीटियोर्स, तो अर्थ के एटमॉस्फेयर में फ्रिक्शन होता है, एंड ड्यू टू दैट फ्रिक्शन
इट हीट्स अप, ये हीट अप हो जाता है, आग लग जाती है इसमें। इट ग्लोज एंड इवेपोरेट्स क्विकली, ये ग्लो करता हुआ दिखाई देता है एंड इवेपोरेट हो जाता है। दैट्स वाई द ब्राइट स्ट्रीक लास्ट फॉर अ वेरी शॉर्ट टाइम, इसलिए जो ब्राइट स्ट्रीक होती है वो थोड़ी टाइम के लिए हमें दिखती है, ऐसा लगता है कि हम जिसको बोलते हैं तारा टूटना, दैट इज़ द मीटियोर्स। तो इस तरह से आपको ये स्ट्रीक ऑफ मीटियोर्स दिखाई देती है आपकी स्काई में। देन मीटियोर शावर्स, जो हम अभी तारा टूटना बोलते हैं, शावर मीन्स बहुत सारे तारे टूटने को जिसको आप बोलते हैं, बट दे आर नॉट लाइक दैट। When the earth crosses the tail of a comet, swarms of meteor are seen. जब अर्थ कॉमेट्स के टेल में से क्रॉस होती है तो वहाँ पे बहुत सारे मेट्योर्स दिखते हैं। स्वाम मीन्स ग्रुप ऑफ मेट्योर्स आर सीन, दीज आर नोन एज मेट्योर शावर्स। सम मेट्योर शावर अकर एट रेगुलर इंटरवल्स ईच ईयर्स, कुछ मिट्योर शावर कुछ रेगुलर इंटरवल में दिखते हैं, एवरी ईयर, ईच ईयर। यू कैन फाइंड द टाइम ऑफ देयर अपीयरेंस फ्रॉम द साइंटिफिक मैगजीन और फ्रॉम द इंटरनेट। ओके, देन some meteors are large and so they can reach the earth before they evaporate completely. The body that reaches the earth is called a meteorite. कुछ meteors बहुत large होते हैं and they are able to reach the earth before they evaporate completely, and the body that reaches the earth is called a meteorites. meteorites हमारी अर्थ तक पहुंचते हैं, आपने सुना होगा कई जगह पर, जैसे उसकी वजह से लेक्स भी बन जाती है, जैसे अर्थ को वो टच करते हैं तो वहाँ पे लेक्स बन जाती है, और उसको उससे साइंटिस्ट स्टडी करते हैं हमारे हेवन के बारे में एंड एस्ट्रोनॉमी के बारे में। मीटियोराइट्स हेल्प साइंटिस्ट इन इन्वेस्टिगेटिंग द नेचर ऑफ मटेरियल फ्रॉम विच द सोलर सिस्टम वॉज फॉर्म्ड। ठीक है, सोलर सिस्टम किससे बना है ये मीटियोराइट की स्टडी से पता चलता है। नेक्स्ट इज आर्टिफिशियल सैटेलाइट्स। यू मस्ट हैव सीन दैट देयर आर नंबर ऑफ आर्टिफिशियल सैटेलाइट्स विच आर ऑर्बिटिंग द अर्थ। You might wonder how artificial satellites are different from natural satellites. कैसे different है? Artificial satellites are man-made. First difference is that artificial satellite man-made है. They are launched from the earth. They revolve around the earth much closer than Earth's natural satellite, the moon. तो वो अर्थ के क्लोजर रिवॉल्व करते हैं और मून से वो नज़दीक होते हैं। इंडिया हैज़ built and launched several artificial satellites. Aryabhatta was the first Indian satellite. Aryabhatta was the first Indian satellite. Some other Indian satellites are INSAT, IRS, Kalpana 1, EduSat, etc. INSAT means Indian National सैटेलाइट। ये सारे आपके सैटेलाइट्स के नेम है। आर्यभट्ट फर्स्ट इंडियन सैटेलाइट है, ये आपको नोट डाउन करना है। आर्टिफिशियल सैटेलाइट्स हैव मैनी प्रैक्टिकल एप्लीकेशंस। अब सैटेलाइट्स क्यों बनाते हैं, क्या यूज़ है उनका, क्या एप्लीकेशंस है? दे आर यूज फॉर फॉरकास्टिंग वेदर। आजकल आपको वेदर की रिपोर्ट मिल रही है बिल्कुल सही से, वो किसकी वजह से? आर्टिफिशियल सैटेलाइट्स की वजह से। ट्रांसमिटिंग टेलीविज़न एंड रेडियो सिग्नल्स, आपके टेलीविज़न एंड रेडियो सिग्नल्स आ रहे हैं, आप देख सकते हो, टीवी रेडियो सुन सकते हो। दे आर ड्यू टू दीज आर्टिफिशियल सैटेलाइट्स। दे आर ऑल्सो यूज फॉर टेलीकम्युनिकेशन एंड रिमोट सेंसिंग। टेलीकम्युनिकेशन में भी इसका यूज़ होता है, रिमोट सेंसिंग में भी इसका यूज़ होता है। एंड I want to tell you that by remote sensing we mean collecting information from a distance. ठीक है, रिमोट सेंसिंग का मतलब क्या होता है? डिस्टेंस से इंफॉर्मेशन कलेक्ट करना। जैसे आप गूगल मैप का यूज़ करते हैं, मैप में आप किसी भी प्लेस की को देख सकते हैं कि यस मुझे यहाँ जाना है, ये प्लेस इस जगह पर है, इस लोकेशन पर है। सो दीज आर इन दिस वे द आर्टिफिशियल सैटेलाइट्स आर वेरी हेल्पफुल फॉर अस. These are the pictures of some Indian satellites that are made by scientists. That's all for today. Thank you. Have a nice day.